السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ میرا نام رباب ہے۔ میں ایک ان پڑھ گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان پڑھ اور روایات پرست گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ والد صاحب کو بہت دکھ تھا کہ وہ پڑھ لکھ نہ سکے، تب بھی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے تعلیم کے زیور سے وہ محروم نہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو عیب تصور کرتے تھے، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو وہ حکم کا درجہ دیتے۔ مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ امی جان دوسرے بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی۔ چھوٹی سی بچی کی پرورش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں ان دنوں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور مشکل سے میں 7 برس کی تھی۔ ایک روز پھپھو فاطمہ گھر آئیں اور والد سے کہا، تم دوسری شادی کر لو، اس ننھی بچی کو میں نہیں سنبھال سکتی۔ میرے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور گھر کا سارا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ پھپھو ابو کی سگی بہن نہیں تھی، دور کے رشتے سے ان کی کزن تھی۔ امی کی وفات کے بعد والد نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ فاطمہ پھپھو کے خود 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ سب سے بڑا بیٹا 16 برس کا تھا۔ باقی تمام بچے چھوٹے تھے، بہت شرارتی تھے، مجھے تنگ کرتے تھے۔ اسی صورتحال میں والد کو دوسری شادی کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا، حالانکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال فاطمہ پھپھو نے ہی رشتہ تلاش کر کے ابو کی شادی کرا دی۔ نئی ماں پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ والد نے امی کو سمجھا دیا تھا، دیکھو میں ان 2 بچیوں کی خاطر تم سے شادی کر رہا ہوں، میری بچیوں کا خیال رکھنا اور ان کو ماں کا پیار دینا۔ شروع میں تو آسیہ امی نے ہمارا خیال رکھا، جلد ہی وہ ہماری نگہداشت سے تنگ آ گئیں۔ اس نے ہمیں اپنے لیے مصیبت سمجھ لیا۔ ماں چاہتی تھی کہ میں اسکول نہ جاؤں بلکہ اپنی بہن نائلہ کو سنبھالوں، جبکہ والد نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ رباب ہر حال میں اسکول جائے گی، اس کو اسکول سے ہٹانے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ آسیہ کی فطرت میں ضد اور خود سری تھی، لہٰذا وہ ہماری پرورش کی ذمہ داریاں اٹھانے سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ پھر جب خدا نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو وہ مزید لاپرواہ اور مغرور ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں ہم سے چھٹکارا پانے کا سوچنے لگی۔ میری بہن نائلہ ابھی صرف سال بھر کی تھی کہ ماں نے اس سے بے رخی برتنا شروع کر دی۔ ایک روز میں اسکول گئی ہوئی تھی اور ابا روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر تھے۔ ماں نے ہانڈی میں ساگ ابالا اور اسے چولہے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ وہ اندر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے چلی گئیں۔ نائلہ پاؤں کے بل چلتی ہوئی کمرے سے برآمدے میں آئی اور گرم گرم ساگ کی بڑی ہانڈی سے وہ جل گئی۔ پھر ایک چیخ بلند ہوئی۔ نائلہ بری طرح جل چکی تھی۔ جب ماں نے چیخ سنی تو باہر آئی۔ نائلہ گرم ساگ سے جل کر تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں نے کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں میں سے ایک کو آواز دے کر بلایا اور کہا، جا کر میرے میاں کو خبر کرو کہ اس کی بیٹی جل گئی ہے۔ ابا نزدیکی زمیندار کے ڈیرے پر تھے۔ جب تک ان کو خبر ہوئی اور وہ گھر آئے، ہسپتال جانے سے پہلے میری ننھی نائلہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس سانیہ سے میرے والد کے دل کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں بھی دکھ سے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری آہیں تو نائلہ کو واپس نہیں لا سکتی تھیں۔ وہ پاکیزہ روح جنت کی روح تھی، سو جنت میں چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ نائلہ کی وفات کے بعد ابا بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ اللہ نے آسیہ امی کو ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ ابا نے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کیا۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس پر ابو نے بکریوں کا باڑا بنا دیا۔ ریوڑ پالتے تھے، بیوپاری یہ ریوڑ خرید کر لے جاتے۔ رفتہ رفتہ آمدنی میں برکت ہونے لگی۔ اب میں 9ویں میں تھی، سالانہ امتحان قریب تھے۔ انگریزی اور حساب میں کمزور تھی اور پڑھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں امی کا ایک کزن شہر سے ان کو ملنے کے لیے آیا۔ وہ کالج کا طالب علم تھا، اس کی انگریزی اچھی تھی۔ آسیہ امی نے بھی کہا کہ تم اس کو پڑھا لیا کرو، جب تک یہاں ہو تم کو امتحان کی تیاری یہ کرا دے گا۔ ابا نے اجازت دے دی اور روز علی سے گھنٹے 2 گھنٹے میں پڑھنے لگی۔ میں خوش تھی کہ اب ضرور میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک روز آسیہ امی کی ماں بیمار ہو گئیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ ابو بیوپاری کے ساتھ پہلے ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اتنے میں علی آیا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ امی نظر نہ آئیں تو پوچھا، باجی کہاں ہے؟ باہر گئی ہیں، میں نے جواب دیا۔
अच्छा तुम किताबें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो। आज मेरे पास वक्त कम है, किसी दोस्त के पास जाना है। मैं किताबें ले आई और पढ़ने बैठ गई। अली तवज्जो से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते न जाने उसे क्या हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसके गलत इरादों से वाकिफ़ ना थी, इतनी समझ भी ना थी मुझ में। मैं खुद को उसके बुरे इरादे से बचा ना सकी। ये कहकर वो घर से चला गया कि किसी को मत बताना, अगर बताया तो आसिया बाजी से तुम्हारी शिकायत करूँगा। फिर उनका गुस्सा तो तुम जानती हो ना। मैं सौतेली माँ से बहुत डरती थी। अगर उन्हें कुछ बताती भी तो वो अली को दोषी ना ठहराती, सारा इल्ज़ाम मेरे सर डालकर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवाती। अली अगले दिन वापस कराची चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म ना था कि ऐसी गलतियों पर कोई मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं उन दिनों बमुश्किल 14 बरस की थी। अली को गए हुए 2 माह हुए थे कि एक दिन जब अब्बा बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीले सांप ने उनको डस लिया और उनको सांस लेने की भी मोहलत ना दी। वो जहाँ खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। उन पर गनूदगी तारी हो गई। किसी को इल्म ना था कि उनके साथ क्या हुआ है। हम समझे वो खेतों की तरफ गए। जब मगरिब होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा, तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि इस वक्त वो दूध धोने ज़रूर आता है, ज़रा देख कहीं बाड़े में ना हो। मैंने बाड़े में झांका तो अब्बू को फर्श पर गिरा हुआ देखा। मैं दौड़ी हुई अम्मी की तरफ गई और उनको बताया कि अब्बा ज़मीन पर गिरे हुए हैं। वो भी दौड़ती हुई आई, मगर वो तो मर चुके थे। माँ तो जो रोई सो रोई, मगर मेरी तो सचमुच दुनिया उजड़ गई थी। मेरा कौन था वालिद के सिवा। अब्बा की वफ़ात को अभी 2 माह ही गुजरे ना थे कि मैं बीमार पड़ गई। 2 कदम चलती तो गिरने लगती। अजीब सी कैफियत थी। माँ समझी कि बाप की मौत का सदमा है, लेकिन जब हालतें गैर होने लगी तो माँ मुझे हकीम के पास ले गई। उसने मेरी आंखें चेक की और कहा, इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मी इद्दत में थी और शहर ना जा सकती थी। हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर था जहां लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हुई थी। आसिया अम्मी मुझे उसके पास ले गई। उस हेल्थ वर्कर ने मुझे देखा तो माँ से कहा, तुम्हारी लड़की से कुछ गलती हो गई है, अब तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। मालूम करो किससे उसकी दोस्ती है। अगर किसी से शादी कर लो तो इज्जत बचा पाओगी, या फिर इसका कोई दूसरा हल सोचूं। ये सुनकर माँ का रंग फीका हो गया। मुझे घर लाकर मारने लगी। आखिर तुझे इतनी सी उम्र में क्या सूझी? किससे खुफिया तौर पर तूने रिश्ता जोड़ लिया है? इसलिए तो तेरे अब्बा से मैं कहती थी कि इसको स्कूल ना भेजा कर, ज़माना ख़राब है। ज़माना क्या ख़राब है? अरे तू तो खुद ही ख़राब है। अब मैं तेरा क्या करूं? बहुत इसरार पर मैंने अली का नाम ले लिया तो वो मुझे पीटने लगी। कमबख्त अपने असली आशिक को बचाने के लिए मेरे अली पर तोहमत धर रही है। अब तो मैं एक पल भी तुझे न रखूंगी। अगले दिन उसने तांगा मंगवाया और मुझे साथ बिठा दिया। जब दूसरा गांव आया, तांगे से उतर गई और मुझे वीराने में धक्का दे दिया कि जहां दिल करे चली जाओ, अब मेरे घर लौटकर तुम कभी मत आना। मैं इस वीराने में एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। सोच रही थी अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग और उनका बेटा उधर से गुजरे। उन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा तो सड़क से उतरकर मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनसे कहा, मेरी माँ सौतेली है और बाप मेरा फोत हो गया है। सौतेली माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है। मेरा कोई दूसरा घर नहीं। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर में मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मुझे अपने बाप की जगह समझो, मेरा एतबार करो। मज़ीद कुछ सोचे बिना मैं उनके साथ चल दी। वो मुझे अपने साथ नज़दीकी गांव ले आए जहां उनका घर था। एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। ये उन बुज़ुर्ग की शरीके हयात थी। उन्होंने मुख्तसरन मेरी रुदात बताई। बूढ़ी औरत ने मुझे गले लगा लिया। वो नेक औरत थी। 2 दिन डर से उसे कुछ न बताया कि कहीं ये भी मुझे घर से ना निकाल दें। आखिर बताना तो था, क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक ना थी। बूढ़ी औरत ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी। बजाय गुस्सा होने के उसने मुझे तसल्ली दी, और जब रात को उसका शोहर और बेटा आए तो उनको हकीकत से आगाह किया। वो सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। बिलाखिर उनके लड़के ने फ़ैसला कर लिया। उसने अपने वालिदैन से कहा, माँ ये मुश्किल से 14 बरस की है, ये छोटी और नासमझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में इसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गांव जाइए और उसकी सौतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए।
अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मुझसे निकाह कर दें, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए, आसिया अम्मी से मिले। गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सौतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल न पेश आई। बुजुर्ग खातून ने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, आवारा थी, किसी के साथ भाग गई है। तब उन्होंने कहा कि वो भागी नहीं, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम उसको तुम्हारे पास ले आएं। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, उसको यहाँ मत लाना। वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ उसे ऐसे हाल में ले आए तो गांव के लोग उसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर और क्या कहूँगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने कहा, अगर हम उसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई एतराज़ ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गांव वाले तो उसको यहाँ रहने नहीं देंगे। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और उनकी बीवी घर आए और उन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे, हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाअल्लाह वो खुदा की पकड़ में किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रुसवाई से बचाना है। उन्होंने मेरी कोख में परवरिश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि उसको उस दुनिया में आ जाने दें, और उसको बाप का नाम उनके नेक बेटे ने दिया। उन्होंने गांव में मशहूर कर दिया कि वो दूसरे गांव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और माँ सख्त बीमार थी, लिहाजा हमने उसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह इससे कर दिया। बदनसीब बच्ची पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा की तरफ से उसकी ज़िंदगी इतनी सी थी। बच्ची की वफ़ात के 6 माह बाद वो मुझे अपने अजीज़ों के घर लाहौर लेकर आ गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटे की मनकूहा बनाकर वापस गांव ले आए। उस दिन से आज दिन तक मैं इसी घर में हूँ। ये घर मेरी पनाह गाह ही नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफ़ात पा चुके हैं, मगर उनके फरिश्ता सीरत बेटे ने आज तक मेरी मर्ज़ी का मुझे ताना न दिया और ना कभी जिक्र किया। ये बात सच है कि इस दुनिया में जहाँ अली जैसे लोग हैं, वहाँ अहमद जैसे फरिश्ते सिफ्त मर्द भी हैं। आज अहमद के 3 बच्चों की माँ हूँ और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब भी जब मुझे अली का ख्याल आता है, उसे बद्दुआ देने को दिल करता है कि खुदा करे उसे कभी खुशियों का मुंह देखना नसीब ना हो। आज भी सोचती हूँ कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। तो दोस्तों, किसी की ज़िंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।